Hello, friends. Myself, Mohammad Kazim Sheikh, and I'm back here with the second part of the second chapter of Indian economic development. In the first part, I think we learned a lot about agriculture sector, that means after independence from 1950s. On in the first chapter we discussed how the Indian economy it was crippled, basically how the agriculture it was spoiled, isn't it? And in the second chapter, first part video, we discussed regarding the state of agriculture and how the government after independence from 1950 they decided to restructure, they decided to redesign, uh, renovate the economy, isn't it? And a lot of things came into existence. The government did a lot to revive the Indian agriculture, to revive the agricultural sector. A lot of steps were taken, and in the first video of the second chapter, I concluded by saying something regarding modernization. And again, I'm repeating this particular definition because government focused on modernization. So here in the second chapter, we'll talk about the how what government did to restructure, to rejuvenate the economy, basically the agriculture and the industry. Okay, so modernization, they decided to do the modernization of Indian agriculture and Indian industry. Okay, so first we have to understand what is the definition of modernization. This is applicable to everywhere, but basically we are talking about economy. So a variety of structural and institutional changes so as to transform a stagnant economy into a vibrant one. This was the aim. How to transform a stagnant economy, a crippled economy, into a vibrant economy through number of structural and institutional changes. Okay, a lot of structural changes, a lot of institutional changes just to revive the Indian economy. Basically, in this particular case, it is agriculture. Okay, and I will give one particular example. A farmer can increase, INC means what? Increase the output by using new variety of seeds, factories using new types of machines. So this is one particular way. Okay, Indian agriculture, the main problem is how to increase the output or productivity. Okay, so that could be done only through seeds, new variety of seeds, and uh, variety of seeds. Okay, and using new types of machines. And that means you have to use scientific methods, scientific tools to increase the agricultural production. Okay, by using variety of seeds, isn't it? Factories using new types of machine. The machine कब आएंगे when you to set up new factories. Okay, institutional changes which makes an economy progressive, very important, and we'll discuss about institutional changes later on. Okay, what are the institutional changes? So institutional changes which makes an economy progressive. Okay, now the thing is that we inherited a particular crippled economy, pangu economy हमने inherit की थी, and lot of what we say, when it comes to economy, lot of bureaucratic bottlenecks were there, lot of what we say rat tapism was there, corruption was there, government hindrance was there, blockage was there. So government decided कुछ चीज़ें हमको हटाना पड़ेंगी तभी economy revive हो पाएगी. Okay, and very important, making use of the talent of women, making use of the talent of women. And yes, you know, Indian economy is Indian society is it is considered as very conservative. No gender equality is there, and at that particular time, 1950s and 60s, isn't it, the women, they lived a cocoon life. Okay, until and unless you opt for gender equality, you give some rights to women, then the country cannot progress. Okay, so this was the aim at that particular time, making the use of talent of women, which was something very important. Talent का औरत का use करना है. Then something very important, if you want to make an economy modern, that is called self
reliance, okay, not depending upon any other country, okay. And in the 50s we totally dependent on foreign countries, okay. No export was there, only import oriented economy it was there in the 50s, okay. एंड आप कह उस ज़माने में कहते थे कि एक सुई जो होती है, सुई का भी प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता था, वो भी इम्पोर्ट करना पड़ती थी। एंड फॉरगेट अबाउट द फूड ग्रेन्स, इंडिया द विडंबना देखिए कि इंडिया इट वॉज an agrarian economy, but then also we have to import food from USA at that particular time. So it was very very important to make the country self reliant, isn't it? किस अपने बलबूते पे अपने पाँव पे खड़ा होना, not depending on external help, using own resources rather than imported resources. Very important, not depending on external forces, okay? help, कोई हमको हेल्प नहीं चाहिए, हमें अपने पाँव पर खड़े होना। जैसे कि अभी हमारे पूज्य नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनो। सो दैट वाज द एम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो फर्स्ट 7 5 year plans टारगेटेड सेल्फ रिलायंस। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है भाई लोगों, यहाँ पर कुछ चीज़ें कागज़ पे बहुत अच्छी लगती हैं, दैट वी टारगेटेड, ओ 5 year plans विल ऑप्ट फॉर द 5 year plans, isn't it? पहले 5 year plans में ये टारगेट हुआ था कि वी हैव टू मेक द कंट्री self-reliant. Got it? But unfortunately, what happened in India, this is the basic problem. Things are there on the paper, but they are not implemented properly. तो वो कुछ हद तक हुआ, कुछ हद तक नहीं हुआ. Got it? What we used to do, we imported food supplies at that particular food supplies हम यहाँ पे import करते थे, foreign capital, foreign machines यहाँ इंडिया में होती थी, foreign goods, Indian sovereignty vulnerable, very important, ये चीज़ बहुत important है। हर चीज़ आप foreign की लेके आ जाओगे, isn't it? Your food supplies, the irony, India is a कृषि प्रधान देश, but then also you have to import food grains from there, foreign capital, no machines are there, you have to import machine, foreign goods, एक फैसिनेशन रहता था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग की इम्पोर्टेड माल है, isn't it? स्वदेशी का कोई रोल नहीं था उस जमाने में। सो इफ एवरीथिंग इज फॉरेन, सो इवन इफ यू गॉट द freedom, that freedom will be always at stake, that freedom will be very very vulnerable, danger of your sovereignty would be always at stake. Got it? on आप independent हो जाओगे, और then lot of pressure would be there from the foreign countries, okay, ये रहा इंडिया के अंदर 1990 तक, isn't it? Lot of pressures will be there, you have to take, the country would be debt ridden. So in this particular manner what will happen, your sovereignty would be always at stake, okay. physically आप free हो गए, लेकिन फिर भी the strings would be attached. That is something very very important. So पूरी तरह से आत्मनिर्भर हमको बनना है, ठीक है। फिर एक और एम क्या था, one more important, very important aim of this what we say restructuring of economy, बहुत important चीज़ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इक्विटी बहुत important चीज़ है। इक्विटी इज, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, वॉट एवर ग्रोथ इज देयर इन योर कंट्री, मे बी प्रोडक्शन इज वेरी वेरी हाई, प्रोडक्टिविटी इज वेरी वेरी हाई, isn't it? Per capita income is very very high, national income is very very, until and unless the fruit of this particular production, the fruit of economic development not reaches to the poorest, then that development will be of no use. I hope you understood. Even if the country's economy is booming, country is progressing a lot, but the thing is that fruit should be shared equally, the fruit of development should be shared equally, isn't it? आप मैंने एग्जाम्पल शायद पहले भी दिया था कि केक है, isn't it? You have to cut the cake into proper pieces and then you have to distribute the pieces of cake equally. ऐसा नहीं कि किसी को बड़ा शेयर मिल गया, isn't it? जैसे 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा जो बहुत लाड़का है माँ का, उसने एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको दे दिया, और फिर बाकी के 5 बच्चे हैं ना, उनको बोला कि ये भाई आधे में से आप 5 बांट लो। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, दैट मीन्स दिस इज पार्शियलिटी। सो इक्विटी इज इक्विटेबल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट। ये इंडिया के अंदर नहीं था शुरू से, ठीक है। सो हाई ग्रोथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, modern technology development useless without equity. Fruit of development should be shared
इक्वली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी आपके अंदर डेवलपमेंट, आप मशीन ले आए, यू ब्रॉट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैपिटल, इजंट इट, हाई ग्रोथ इज देयर, बट उसका वो जो शेयर जा रहा है वो 20% या 15% अमीरों को जा रहा है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। और देयर शुड बी द गल्फ विच इज देयर बिटवीन रिच एंड द पुअर, इट शुड बी ब्रिज्ड, ओके। The gulf between haves and have not should be bridged properly, okay. And how it should be done, कैसे होगा ये? By improving standard of living of weaker sections of society and reducing income inequalities to promote social justice. कैसे होगा? How it should be done? By improving standards of living of weaker sections of, you have to concentrate on them, isn't it? यही problem थी इंडिया के अंदर right from the beginning, that when we got the independence 70 to 80% of the people, they were very very poor, they were downtrodden, तो उनको रेस करना है, ठीक है। यू हैव टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। भाई अभी भी इंडिया के अंदर यही प्रॉब्लम है कि 80% ऑफ द वेल्थ इन इंडिया इज ओन्ड बाय 20% पीपल। हॉरिबल इट इज। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम का, ओके, देन ओनली द सोशल जस्टिस विल बी प्रॉपर इन इंडिया, ओके। The gulf between haves and have-nots must be bridged properly. That is something very very important. जो गरीबों और अमीरों के बीच की जो रेखा है, the gulf between rich and poor should be must be bridged. खाई को पाटना है, ओके। द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, दैट इज फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग। तीन चीज़ें बोलते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और है बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज एजुकेशन। इट शुड बी फॉर एवरीबॉडी, इट शुड नॉट बी फॉर द प्रिविलेज्ड क्लास, तभी आप वो माने जाओगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें करने की सोची, ओके। एंड देन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। फुल एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक। अभी हम इकोनॉमिक प्लानिंग के सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं ना। मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, और फुल एम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। 6 महीने लोग बेचारे दहाड़गी करते हैं, काम करते 6 महीने बैठ रहते हैं, isn't it? So फुल एम्प्लॉयमेंट, 365 दिन काम मिल जाए, वो डेवलपमेंट है। दैट मीन्स एवरीवन हु इज एबल टू रीड एंड राइट एंड ऑल्सो willing to work must get employed. The one जो पढ़ा लिखा है, जो कुछ पढ़ा लिखा है, मतलब the one who is able to read and write and capable of working should get employment. इसी के साथ में अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है लेकिन capable of working, then also he should get employment. दोनों चीज़ें, पढ़े लिखे को भी मिलना। हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे को नौकरी नहीं मिल रही, isn't it? So if he is able to read and write, isn't it? If he's without any handicap, he is physically healthy, then he should get the employment, okay. So evaluation of a, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। evaluation of achievements of goals of 5-year plans। अब हम पढ़ते हैं 5 साल के जो हमने 5-year plans रखे थे, कैसे रखे थे, on the basis we copy it from the USSR। तो वो सक्सेसफुल रहे कि नहीं, लेट अस सी। पहली बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो मैंने बता चुका हूँ, तो ऐसा रिकैप है ये, जल्दी से देख लो। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सरप्लस लेबर, छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा होता था, isn't it? And pressure on land, it was very very small land holding is there, and so many people were involved in in work। तो वो डज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती। बहुत सारे लोग एक ही छोटी सी ज़मीन पर काम कर रहे हैं, मतलब काफ़ी लोग तो यूजलेस हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी, वाई? बिकॉज द फार्मर्स आर यूज्ड ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स, इवन इफ दे हैव द लैंड, दे वर नॉट एबल टू यूज द sophisticated implements, ठीक है, साइंटिफिक इम्प्लीमेंट, एंड डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। लैंड टेन्योर सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम, ये भी बहुत एक था जो अंग्रेज़ों ने शुरू किया था। इस सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर की हालत बहुत ख़राब थी, ठीक है, इंडिया के अंदर, ओके। सो पॉलिसीज़ एंड मेजर्स टू सॉल्व एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स, क्या क्या पॉलिसीज़ हुई टू सॉल्व द एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, ओके। पॉलिसीज़ एंड मेजर्स टू सॉल्व एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स, ओके। फर्स्ट, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड अदर रिफॉर्म, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, थोड़ा सा देख लेना आप। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स समझ लीजिए यहाँ पे,
इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो मैंने पहले बताया था, मैं बता कि क्या होता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। पहली चीज़ जो सबसे बड़ा रोड़ा था आफ्टर 1950, if you talk about certain states like Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal, they were all the land, most of the land, 80% of the land, it was owned by the landlord, and they were like the intermediaries between Britishers and farmers during that particular time. Now, abolition of intermediary. Who are intermediaries? बीचवान जिसको कहते हैं, बीच में रहने वाले, मिडिल मैन बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड पुअर फार्म, ये जमींदार थे. सो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, जमींदारी सिस्टम अबॉलिश. जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना सरकार ने सोचा कि भाई अगर हमको गरीब किसान को कुछ देना है या कुछ करना है तो वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस जमींदारी सिस्टम. ओके. और वो ज़मींदार क्या करते थे उस ज़माने, ब्रिटिशर्स के टाइम भी और ब्रिटिशर्स के थोड़े समय बाद भी. आपने मूवीज़ में देखा होगा ज़मींदार कैसे होते थे ना. नथिंग दे यूज टू डू. They used to only collect the revenue. They merely collected rent from the actual tiller. Actual tillers mean those who were really working on the field. Tenants, farmers बेचारे गरीब जो वहाँ काम करते थे. Of soil, उनको क्या कहा जाता था, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, टिलर्स ऑफ सॉइल. विदाउट एनी रोल इन इम्प्रूविंग प्रोडक्शन. वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि भाई हम लोग हमारा पैसा लगा दें. हम ज़मीन किसके नाम रहती थी, ज़मींदारों के. काम कौन करता था, टिलर्स ऑफ सॉइल. ठीक है, टिलर्स ऑफ सॉइल वो काम करते थे. उनको कह देते भाई हम, वो बोलते सर इसको ज़मीन में ये कुछ करना है, हमको कुछ वी हैव टू चेंज सर्टेन थिंग, वी हैव टू इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर नॉट देयर, वी वांट टू परचेज सीड. बोला ये आप जानो, हमको तो साल का इतना लगान चाहिए, टैक्स चाहिए, रेंट चाहिए. So they would not, they had no role in improving the production, isn't it, or fertility of land, nothing. बस वो collect करते थे, isn't it, and they were having power to increase the rent also. Got it? So steps were taken to remove intermediaries. Very important. Then motive was ownership of land would give incentives to the tillers to invest in production related activities. और ये एक मोटिव था गवर्नमेंट का कि ओनरशिप अगर डायरेक्टली दे दें किसको, फार्मर. उस जमाने में ये होता था एट दैट पर्टिकुलर टाइम दैट द रियल ओनर्स वेर जमींदार, isn't it? They were sleeping owners in a way, leading a very luxurious life, and tillers of soil they used to work. ठीक है. सो गवर्नमेंट डिसाइडेड समथिंग, है ना, उन्होंने कुछ लैंड रिफॉर्म करने की कोशिश करी, ये हटा दो ये ज़मींदारी सिस्टम. एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन इफ द ओनर्स ऑफ लैंड वुड बी लैंडलेस फार्मर्स, व्हाट विल हैपन, दे विल हैव द मनी इन देयर हैंड एंड दे वुड बी एबल टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी. भाई अगर ज़मीन उनके नाम कर दिया आपने, अब ज़मींदार को कुछ नहीं देना, तो क्या होगा, उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा, उनके पास पैसा हाथ में रहेगा, तो फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं जिसके लैंड की, वहाँ पैसा खर्च कर सकते हैं, अच्छी सीड्स खरीद सकते हैं, कुछ साइंटिफिक इम्प्लीमेंट्स खरीद सकते हैं. समझे. अब उसका रिजल्ट क्या हुआ देखो. 200 lakh tenants came into direct contact with the government. They were freed from zamindari system and the exploitation. 200 लाख टेनेंट्स, कैन यू इमेजिन, उनके हक में ज़मीन आ गई, जहाँ पर वो 20-20, 25-25, 30 साल से टेनेंट्स के रूप में, किराएदार के रूप में काम कर रहे थे. अब ज़मीन ज़मींदारों से लेके उन्हें दे दी गई थी कि भाई आप 30 साल से कर रहे हो, ज़मीन आपकी. ठीक है. सो इन अ वे 200, अब ये क्या होता क्या है, 200 लाख टेनेंट्स लिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट ज़मीनी हकीकत कुछ और रहती है और रियल में कुछ होता है. ठीक है. इन सर्टेन एरिया ज़मींदारी सिस्टम का, यही मैं बोलने चाह रहा था कि इन सर्टेन एरिया ज़मींदारी सिस्टम कंटिन्यू ड्यू टू मसल पावर. एक हमेशा एक जोक बोलता हूँ कि ज़मींदार यूज टू हैव दैट मसल पावर. मसल पावर से वो क्या करते हैं, हमेशा गरीबों को मसलने की कोशिश करते हैं. लठेत होते थे उनके ऐसे. तो पेपर में तो आ गया कि भाई हाँ हमने ज़मीन दे दी, बट दे यूज टू कंट्रोल द लैंड थ्रू द लठेत्स और मसल मैन. ओके. और एक तो चीज़ क्या थी कि उनके पास पावर था, पैसा था, पुलिस उनके साथ रहती थी, एंड द लूप होल्स इन द लीगल सिस्टम. हमारे इंडिया के अंदर प्रॉब्लम यही है कि लीगल सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, और लूप होल्स की वजह से कभी कभी जो गिल्टी होता है उसको पनिश नहीं किया जा रहा. उन्होंने काफ़ी अच्छा, बेचारा जो गरीब किसान है वो कोर्ट के चक्कर कैसे लगाएगा, isn't it? ज़मींदार तो अच्छा वकील कर लेगा,
पैसे खिला देगा, isn't it? So lot of loopholes were there in the legal system, because of which zamindar system, it was abolished on paper, but still it was going on, or the intermediaries were not removed properly. The poorest of the agricultural labor and sharecroppers did not benefit from this reform. Very important. The poorest, अब ये होता क्या है, समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम बात करते हैं कि किसान या फार्मर्स ऑल्सो हैव द सोशल हेरार्की। मतलब ये नहीं कि सभी फार्मर्स गरीब हैं या सभी अमीर हैं, उनकी भी सोशल हेरार्की। सबसे ऊपर के बहुत प्रॉस्परस फार्मर जो करोड़पति क्या अरबपति हैं, लाइक द फार्मर्स ऑफ बिहार, सॉरी नॉट बिहार, फार्मर्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दे आर वेरी प्रॉस्परस, वो बहुत अमीर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसी कैटेगरी में जो एट द लोएस्ट लेडर कौन थे, एग्रीकल्चरल लेबरर, जिनके ना ज़मीन थी ना कुछ था, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। ऐसे नहीं, वो 25-30 साल से काम नहीं कर रहे थे ज़मीन पे, 1 आध साल से कम, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शेयर क्रॉपर्स डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम दिस रिफॉर्म। शेयर क्रॉपर्स भी यही हुए, कौन, टेनेंट्स। कहने का मतलब ये है जो टेनेंसी थी फील्ड की, या जो पुअर फार्मर्स थे जो ज़मीनों पे काम कर रहे थे 25-25, 30-30 साल से, और अपनी क्रॉप को शेयर करते थे किसके साथ, ज़मींदारों का। कुछ को तो फ़ायदा हो गया, कुछ को नहीं हुआ, और सबसे ज़्यादा हालत ख़राब किसकी थी, द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ओके। और शेयर क्रॉपर, जैसे मैंने बताया कि होता क्या था, शेयर क्रॉपर्स का मतलब यहाँ पे, जैसे आपने चंपारण, हमने चैप्टर पढ़ा होगा या अभी हम पढ़ेंगे 12th में, चंपारण का एपिसोड आपने सुना होगा, महात्मा गांधी का, था ना। वहाँ पर जो फार्मर्स थे उनको फोर्स किया जाता था, भाई क्या आप जो है, जो आपकी फील्ड है उसमें आप 20%, 25% पे क्या इंडिगो उगाइए। इंडिगो, इट वॉज अ कैश क्रॉप, एंड वो हमको सरेंडर करना पड़ेगी, नहीं तो आपकी ज़मीन को हम कब्जा कर लेंगे। तो ये शेयर क्रॉपर्स है, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस शेयर क्रॉपिंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि ज़मींदारों ने अपना कब्जा जमाए रखा, और फार्मर्स को कहते रहते थे कि भाई आपके लिए ये हम ख़त्म नहीं हुए हैं, आपको तो हमें शेयर देना पड़ेगा। पेपर में शो करते थे वो कि भाई हमने ज़मीन दे दी इनको, लेकिन उनको जाके कह देते थे कि भाई नहीं, ज़मीन तो तुम्हारे को दे दी, लेकिन साल का इतना अनाज हमारे पास आ जाना चाहिए, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Another important step which was taken, it was लैंड सीलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश कीजिए। ये भी हमने दैट्स लैंड सीलिंग वी टुक फ्रॉम यूएसएसआर, ठीक है। Another remarkable policy, it was what, let us see what is this particular policy, the लैंड सीलिंग। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ कि ज़मींदारी सिस्टम से कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन पूरी तरह फ़ायदा नहीं हुआ। Now, what is land ceiling? The maximum size of land which could be owned by an individual, and beyond that limit would be confiscated by the government and would be allotted to the poor farmer. Very important. क्या कहा, उस ज़माने में आप समझिए कि बिहार वगैरह या यूपी में, बंगाल में, ज़मींदार तो क्या होते थे, ज़मींदार से बड़ी चीज़ होती थी जागीरदारी। जागीरदार थे, जागीरदार मतलब दे यूज्ड टू ओन विलेजेस, isn't it? 1000 acre, 500, the whole village were owned by them. इतनी ज़मीनें होती थी उनके पास, isn't it? Now government put a limit that an individual can own this much land only, land holding. इससे ज़्यादा आपके होगे तो गवर्नमेंट का आपको देना पड़ेगा। Why? Because government ने सोचा कि whatever land we would confiscate का मतलब कब्जा करना, whatever land we would seize from the जमींदार्स और जागीरदार्स, we would distribute that to the landless labor। बहुत अच्छी है चीज़, पेपर पे बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि वो फॉरेन कंट्री यूएसएसआर में किया था, एंड वुड बी अलॉटेड टू द पुअर फार्मर। लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जब उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या पर्पस था ऑफ लैंड सीलिंग? पर्पस वॉज टू प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर, सबका विकास, सबके साथ सबका विकास, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, ये खाई को पाटना है, ओके। बट वो इतना आसान नहीं था, जैसे मैंने बताया। प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड सीलिंग, द बिग जमींदार्स टुक एडवांटेज ऑफ लूप होल्स इन लीगल सिस्टम, they challenge its implementation।
और सरकार उन्होंने चैलेंज किया, भाई ये तो गलत है, हमारी ज़मीन है, हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, वाई दे आर confiscated by the government, they would challenge this particular decision of the government in the court. Okay, got it? और फिर क्या होता था, वो कुछ पिटिशन वो डाल देते थे, पिटिशन डाल देते या केस फाइल कर देते, उससे क्या होता था, चीज़ें डिले हो जाती थी। इंडिया के अंदर आपको मालूम ही है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। बहुत सालों एक किसी बंदे को अगर फांसी हो गई तो फांसी देने में जाने कितने साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही करते थे, कौन, दे वुड टेक एडवांटेज हु जमींदार फ्रॉम द लूप होल्स ऑफ द लीगल सिस्टम। ओके, कि भाई उन्होंने कहा कि भाई आपकी ज़मीन कब्जे में आएगी, तो एक कोर्ट में एप्लीकेशन डालते थे, बोले ये गलत है, तो फिर और एक बहुत ही महंगा वकील कर लेते थे और केस पेंडिंग हो जाता था। द डिले इन द कोर्ट गेव देम टाइम टू रजिस्टर प्रॉपर्टीज इन द नेम्स ऑफ रिलेटिव्स। और फिर क्या करते थे, वो जल्दी से वो प्रॉपर्टीज किसके नाम कर देते थे, अपने रिलेटिव्स के नाम कर देते थे, और कह देते थे कोर्ट में, भाई हमारे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास तो इतने लिमिट के अंदर ही है, और बाकी की प्रॉपर्टी किसके नाम करती, रिलेटिव्स के। फिर ये जब मैटर थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाता था, 5 साल बाद वापस से वो ज़मीन रिलेटिव से अपने नाम करवा लेते थे। आई होप यू अंडरस्टूड। जैसे कि अभी नोटबंदी में हो रहा था, है कि भाई जितना काला पैसा था वो अपने रिलेटिव्स के नाम कर दो, और तो आपके पास कुछ शो ही नहीं होगा, और बाद में भले ही ले लो उनसे। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, खेल होते थे उस ज़माने में। तो द डिले इन द कोर्ट गेव देम टाइम टू रजिस्टर प्रॉपर्टीज इन द नेम्स ऑफ रिलेटिव्स। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो डिले हो जाता था, कोर्ट में केस चलता रहता था, और कोई लोग बेचारे जो ज़मींदार समझदार थे, उन्होंने सरेंडर कर दी ज़मीन, किसी ने नहीं करी अपनी ज़मीन, और केस ऐसा पेंडिंग चलता रहा। और किसी ने अपने रिलेटिव्स के नाम कर दिए, तो रिलेटिव के नाम से वो ज़मीन ऑपरेट होता था। ओके, और रिलेटिव के नाम से क्या होता था, लेबरर से या किससे, किसानों से टैक्स वसूला जाता था, isn't it? कि भाई हमारे पास तो ज़मीन है ही नहीं, बहुत मामूली सी ज़मीन है, isn't it? लाइक दैट सारी चीज़ें हो जाती थी बिकॉज ऑफ द लूप होल्स इन द लीगल सिस्टम एंड ड्यू टू द मसल पावर। ठीक है, टेक्निकल रिफॉर्म्स, द ग्रीन रेवोल्यूशन, टेक्निकल रिफॉर्म। एक और चीज़ जो सबसे बड़ी थी, 60s में स्टार्ट हुई थी, वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन। जैसे इट वॉज स्टार्टेड बाय MS स्वामीनाथन, he was the pioneer एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। जैसे कि आपने सुना होगा वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में। वाइट रिवॉल्यूशन, इट वॉज स्टार्टेड बाय मिस्टर कुरियन इन गुजरात, कोई पूछे वाइट रिवॉल्यूशन क्या है, तो दूध से रिलेटेड, और येलो रिवॉल्यूशन सोयाबीन का प्रोडक्शन। ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आपको भी हम पढ़ ही रहेंगे। द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल वॉज स्नैप्ड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो स्टैग्नेंसी थी, जैसे स्टैग्नेंट वाटर होता है ना, रुका हुआ पानी, अगर पानी कहीं पे रुक जाए तो क्या होता है, मच्छरों को पाल, इट ब्रीड्स मस्कीटोज, अदर व्हाट वी से इंसेक्ट्स, और फिर वो पानी पीने लायक नहीं होता। जल्दी से आपको वहाँ से वो पानी को हटाना है। स्टैग्नेंट वाटर, बहता हुआ पानी बहुत अच्छा होता है, चलता हुआ पानी बह रहा है, पानी रुक गया तो मतलब वो ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मस्कीटोज एंड अदर इंसेक्ट्स, और वो खतरनाक हो जाता है। तो इंडियन इकोनॉमी भी स्टैग्नेंट हो गई थी, तो उस स्टैग्नेंसी को ख़त्म करने के लिए, उसको एक मोशन देने के लिए क्या करा, ग्रीन रिवॉल्यूशन एक सॉल्यूशन आया। ठीक है, इट स्नैप्ड, इट हैज़ ब्रोकन दिस डेडलॉक और दिस पर्टिकुलर स्टैग्नेशन इन इंडियन इकोनॉमी और एग्रीकल्चर। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन रिफर्स टू, अभी डेफिनेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन की, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, दैट इज HYY सीड्स। सबसे पहले तो किस चीज़ का उन्होंने MS स्वामीनाथन ने कोशिश करी कि भाई अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो पहली चीज़ है सीड्स शुड बी प्रॉपर, हाई यील्डिंग सीड्स HYY, उसका पर रिसर्च की गई और उन्नत किस्म के बीज बनाए गए। अब उन्नत किस्म के बीज बनाए गए, उससे क्या हुआ, पैदावार बहुत एकदम से बढ़ गई। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन 1966। इट वाज एन एमलगमेशन ऑफ व्हाट, एमलगमेशन का मतलब मिक्सचर, ब्लेंड ऑफ व्हाट, HYY। तो एक ही फैक्टर नहीं था, 3-4 चीज़ें मिलकर ग्रीन रिवॉल्यूशन का रिजल्ट आया। एक तो क्या,
HYY। दूसरा प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, इन सारे का कॉम्बिनेशन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया। लेकिन इसको समझिए अच्छी तरह, ग्रीन रिवॉल्यूशन इट वाज नॉट परवेसिव। परवेसिव मीन्स सब जगह नहीं इम्प्लीमेंटेड किया गया स्टार्टिंग में इन द 60s, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम था कि पहले हम स्टार्ट वहीं से कर सकते हैं जो स्टेट्स बहुत ही प्रॉस्परस है, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, हरियाणा एंड पंजाब। Because in other states they cannot start, where Bihar or Madhya Pradesh or Chhattisgarh area, or that particular areas and the tribal areas. Why? Because no irrigation facilities were there, poverty was there, isn't it? Or and that particular land which was there, it was not very very fertile. तो उन्होंने सोचा भाई उस जगह से स्टार्ट करो जहाँ already land is very very fertile, farmers who can afford irrigation facilities properly, who are having tube well, ठीक है, who can afford fertilizers, who can afford pesticide। तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ करवाया? तमिलनाडु और पंजाब में, ठीक है, क्योंकि ये सारे किसान जब बहुत प्रॉस्परस थे, ठीक है ना। और टारगेट उस जमाने में कौन सी फसल थी? दैट वाज राइस एंड व्हीट। तो दे टारगेटेड द फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड तमिलनाडु, और टारगेटेड क्रॉप कौन सी थी? व्हीट और राइस, ठीक है। गॉट इट? Note, green revolution required sound financial resources and superior irrigation facilities which only rich farmers could afford। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्रिटिसाइज भी किया गया कि भाई आप जो कंट्री है ऑलरेडी इतना पुअर है, तो पहले आपको गरीबों का भला करना है कि पहले आप अमीरों को और अमीर बना रहे हो, अमीर फार्मर्स जो हैं उनको और अमीर बना रहे हो। Why? Because green revolution at the initial stage it require sound financial resources, आपका पैसा बहुत होना चाहिए। सुपीरियर इरिगेशन फैसिलिटी मतलब किसान जो है वो सिर्फ आसमान की तरफ नहीं ताके, किसके लिए? पानी के लिए, उसके पास आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटीज होना चाहिए। सुपीरियर इरिगेशन फैसिलिटीज, साउंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज विच ओनली रिच फार्मर्स कुड अफोर्ड, पैसे वाला इसको अफोर्ड कर सकते थे। देयरफॉर ड्यूरिंग फर्स्ट फेज इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। दीज वर द स्टेट्स वर बेनिफिट, सरकारी मदद पूरी मिली। बोला आप, और वो ऑलरेडी पैसे वाले थे, हाँ, वीट का प्रोडक्शन होता था, राइस का प्रोडक्शन, तो और उनको ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। तो पहले फेज में इंडिया जो था, राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, ओके। सो इन द सेकेंड फेज, पहला फेज खत्म हुआ, यहाँ पे टारगेट कौन थे? द रिच स्टेट्स, रिच फार्मर्स। In the second phase, it covered other states and included other crops। सेकेंड फेज में फिर उन्होंने गरीबों की तरफ देखना चालू कर दिया कि चलो बिहार के फार्मर्स हैं, उत्तर प्रदेश के फार्मर्स हैं, उनकी तरफ ध्यान दो, एंड अदर क्रॉप्स वेर टारगेटेड, ओके। बट इसका नतीजा हम आगे देखेंगे, विल एनालाइज व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड फेज। बट एक चीज़ अच्छी हुई कि द डिपेंडेंसी विच वॉज देयर, और what we say, the dependency on foreign imports, got it, for food grains, it was neutralized, and we used to, though we were what we say, agrarian economy, but then also we used to import food grains from USA and other European countries, but so that dependency it was neutralized। And in case of what we say, agriculture, in case of food grains, India became what, self-sufficient or self-reliant। I hope you understood this। आज इतना रखते हैं, got it? And third part very soon I will put। जब तक आप इतना पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एनी डाउट्स इफ़ यू हैव, मोस्ट वेलकम। जो भी डाउट्स हैं आपके, हमसे पूछिए, एंड विल टेल यू। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you, thanks a lot।